मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इन्हीं पल दो पल में क्या कुछ हो जाए कौन बता सकता है। क्या जब आरसीबी मैच पे मैच जीत रही थी, क्या जब केकेआर कोलबोल और वो जीतबो के आस लगाए बैठे थे, क्या जब सीएसके ने पिछले साल के बाद फिर से पर्पल पैच पकड़ी थी, क्या जब आरआर का कमान संजू ने संभाली थी, क्या जब केएल का नया पंजाब दूसरे टीम पर भारी पड़ रही थी, क्या जब सनराइजर्स ने कहा कि अब वार्नर टाटा बाय बाय, नाउ वी हैव केन, अब भी हम जीत सकते हैं, क्या एटलीस्ट तब किसी के जहन में आया था थोड़ा भी कि अब आईपीएल नहीं होगा? क्या जब आरसीबी के फैंस इस बार फिर से खुशी मना रहे थे कि फिर से यार ई साला कप नमदे, ई साला कप नमदे, क्या जब पैट कमिंस ने $50,000 डोनेट कर कर हमारा दिल जीता था, क्या जब सीएसके के ओपनिंग बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे थे तो धोनी किस नंबर पे आएगा ये हम सोचते हुए बैठे थे, क्या जब पोलार्ड ने ऐसा गेम दिखाकर हार्ड ऑलमोस्ट फेल कर दिया था, क्या तब हमने सोचा था कि इस बार सिर्फ एक ही सुपर ओवर देखने मिलेगा? As the story started from KKR's camp when Varun Chakravarti and Sandeep Warrior got positive, we thought it was just a one match thing. Then the virus moved to the CSK camp when it affected their bowling coach L. Balaji, their bus cleaner, and another support staff. So this time around, we thought, okay, something is there, but it will be fine after today. Then when Delhi's Amit Mishra and SRH's Saha and other players got contracted, then reality sunk in. This bio bubble was breached. COVID has come into the bubble. The bubble is not safe anymore. With all the pressure coming from outside, the media, the countries not letting their own players in, with the safety of players in concern, the BCCI has now decided to suspend the ongoing IPL, as you know, and reschedule it. We heard that they are shifting it to the UAE first, then we heard that they are shifting it to Mumbai, but now the latest news is the IPL has been suspended indefinitely. BCCI is looking for a September window. I think BCCI is in loads and loads of pressure as every player's responsibility is on them. The World Cup is also scheduled in India. So let's see how things unfold. It is very grim for BCCI right now. But IPL or no IPL, cricket or break from cricket, this show must go on. So let's go directly into the show. I am your host, Srijit Iyer, and this is episode number 29. hang on सृजित, आज मैं होस्ट हूँ, शेड्यूल में मेरा नाम है। अरे तुम कहाँ से आ गए यार? ये मैंने शो शुरू कर चुका हूँ, मैं बीच में कहाँ से आ गए तुम? अरे नहीं, लेकिन मेरा नाम है आज शेड्यूल में। नाम चालू करूंगा। कहाँ पर नाम है? कहाँ पर नाम? अरे श्रीजीत कुणाल, तुम दोनों का भी नाम नहीं है। तुम लोग शेड्यूल चेक नहीं करते हो क्या? व्हाट्सएप देखो जरा, बंद हो गया आईपीएल। आज तुम दोनों का एमवीपी बताने का है, ठीक है? तो शुरू करो अभी। So now you know, guys, this show is not going to run in the original format as the IPL is not going on anymore. We will wait for the IPL to resume, but till then, for this episode, we will tell you who was the most valuable player for IPL until now. We have picked the best bowler, best batsman, best fielder, best uncapped player, and best foreigner player for you. So let's now start the episode by telling who is the best batsman according to us. Obviously, Srijit, it has to be the Gabbar. Orange cap winner, 380 runs in 8 matches. This is some extraordinary performance by Shikhar Dhawan. The way he has performed और जो confidence से खेल रहा है शिखर धवन, बहुत अच्छा खेल रहा है। I'm sure T20 वर्ल्ड कप में एक पोजीशन तो है ही उसकी, फिक्स कर दी है उसने। क्या लगता है आपको? भी लगता है ऑब्वियसली T20 इसमें तो उसको आना ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप वो एक स्टेज है जो उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। हम हमेशा देखते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन कितने एलिगेंट लगते हैं, वो जब भी ड्राइव्स मारते हैं तो हम हमेशा देखना चाहेंगे शिखर धवन को ऐसा एलिगेंट ड्राइव मार के इंडिया के लिए अपना खाता खोले। Yeah, obviously यार, the way he's played, I think against राजस्थान जल्दी आउट हो गए थे। वो एक बहुत पुअर शॉट खेल रहे थे, कुछ पीछे मारना था और संजू सैमसन ने कैच पकड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनिंग्स, बाकी के जो इनिंग्स खेले वो कॉन्फिडेंस दिख के आ रहा है कि यस, मैं नेट्स में परफॉर्म कर रहा हूँ एंड यहाँ पे भी परफॉर्म करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
8 मैचेस में 380 रन बनाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ऑरेंज कैप उनके सर पर अभी विराजमान है, और बहुत सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली आगे पीछे हैं उनके, तो वो ऑरेंज कैप छीनने के लिए, बट वो अभी नंबर 1 है। क्या आपको लगता है कि आईपीएल खत्म होते होते उनके पास ऑरेंज कैप रहने वाली है? और क्या आपको लगता है कि ये फॉर्म कंटिन्यू करते हुए, कि ये फॉर्म देखते सिलेक्टर्स चूज करेंगे कि उनको इंडिया के लिए और एक बार खेलने का मौका मिलने वाला है? यस यस, ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि ऑरेंज कैप इन्हीं के पास रहेगा। और उन्होंने 350 बनाया यार 8 मैच में, तो दिखता है कि नहीं, छोटा इनिंग्स को भी लंबा इनिंग्स बनाने का आदत डाल रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा कि 50 होता था तो एक रफ शॉट मार के आउट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 92 है उनका। तो आई फील वो बहुत ज्यादा मैच्योर इनिंग्स खेल रहे हैं। So this is what IPL present to all the players. IPL gave him another opportunity to stamp his authority. So in his typical aggressive fashion, he started the IPL, and we hope so that he will continue to perform like this for India as well as for Delhi Capitals. So let's move on to the best bowler of this season. You have seen who is the best batsman for the IPL until now. Now we are going to see who contained these dangerous batsmen. It is now time for us to see who is the best bowler. So what do you think, Kunal? Who is the best bowler until now in the IPL? It has to be Purple Patel, yaar. 7 matches में 17 wickets. These are some extraordinary stats for an uncapped player. So I feel he is the best bowler so far. So what do you think about it? Harshal Patel actually makes a comeback to the RCB after being traded in from Delhi Capitals ahead of IPL 2021. He has gained a nickname as Purple Patel because he owns the purple cap. 7 matches, 17 wickets is a great achievement. Correct. So he has put all-round impressive performance during the IPL season of 2019-20 for Gujarat. So that he is continuing the same performance in the IPL for RCB. So what do you think about that, like when he got hit by Jadeja? Yeah, obviously यार, one bad game you can see, but वो एक ही ओवर था, उसके पहले उससे क्रूशियल विकेट्स लिए भी थे मैच के लिए। और वो एक ही लेग था जिसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। ऑब्वियसली मुंबई ट्रैक था तो वहां पे तो बॉलर्स फिट नहीं थे, पर देखा जाए तो चेन्नई ट्रैक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जहाँ पे वो कटर्स एंड वो जो स्लो डिलीवरी से जो विकेट्स ले रहा था, तो दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर हिम। We are yet to see that fast track fast track में वो कैसे बोल करता है। The all rounder should be set to play bold once again when the IPL 2021 resumes. So what do you think? Where do you think will he be positioned after the completion of IPL 2021? Do you see him holding the purple cap even after the IPL? I don't think so, because 2 ही लेग हो चुका है, और जहाँ पे बैट्समैन मार रहे हैं, जहाँ पे बॉलर्स की पिटाई हो रही है, वो ट्रैक पे थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो इट इज अ टफ कॉल। बट अगेन फ्यूचर की बात करें तो वो आरसीबी से कहीं नहीं जा रहा, रिटेन तो पक्का हो रहा है। विराट कोहली is not going to leave him anywhere. Yes. So let's move on to all rounders. Yeah, come on. So Srijit, who do you think is the best all rounder so far in this year's IPL? The name I have in my mind, nobody is even close to him. Ravindra Jadeja is best all-rounder. He is the 3rd player who has been retained by CSK in the IPL 2018, and he has been MS Dhoni's go-to man when partnership is needed to be fulfilled. So what do you think about Ravindra Jadeja? Yeah, obviously यार, वो इनिंग्स याद है जहाँ पे हर्षल पटेल को 37 रन मारे थे, तो उसके बाद विकेट्स भी लिए थे, तो दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल कि व्हाट ऑल राउंडर इज supposed to be. Yeah, हर मैच में विकेट्स भी लेते हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं, थ्रोज भी मारते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो सब कुछ ऐसा लगता है जब भी सीएसके के साथ खेल रही है, सीएसके वर्सेस ओपोनेंट नहीं, रविंद्र जडेजा वर्सेस ओपोनेंट, यही लगता है मुझे। और याद रखना कि वो इंजर्ड होके कमबैक कर रहे हैं, बॉलिंग और कैच जो पकड़। करेक्ट। तो उनका हाथ का इंजरी हुआ था टेस्ट मैच में, वो बीच में चले गए थे, और रिटर्न होके उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया है। सो सीएसके इज वेरी लकी टू हैव। Yes, he is the best player so far. I would say the best all-rounder तो है ही, लेकिन what a fielder है, what a fielder। Like ऐसा लगता है कि हर बॉल स्टंप पे आके लगेगा अभी थ्रो के बाद। So he is the most versatile player. Anybody would like to have him in his team. Yes, guys. So let's go on with our best overseas guys. तो सृजित, कौन लगता है कि कौन होगा बेस्ट ओवरसीज ऑलराउंडर प्लेयर?
ओवरसीज ऑलराउंडर प्लेयर की बात करें तो एक्चुअली मुझे एक ही नाम जहन पे आता है, वो है मोइन अली। So, मुझे ही नेवर सीम्स अंडर प्रेशर। सो उन्होंने सुरेश रैना का प्लेस लेकर उनका उन्होंने जो सुरेश रैना जो इतने साल सीएसके के लिए किया है, वन डाउन बैटिंग करके सीएसके के लिए इतने मैचेस जीता है, तो वो प्लेस किसी को मिलना एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो मोइन अली ने वो प्लेस वो लेकर, तो ही नेवर सीम्स अंडर प्रेशर। वो आते ही हमेशा मारने लगते हैं, उन्होंने फ्लिक्स पे बहुत सिक्स मारे हैं, उन्होंने सामने बहुत अच्छा खेला है। तो हर बैट्समैन को इतना फियरलेसली खेलता है सीएसके को हमेशा जो स्टार्ट दिया है, तो मुझे लगता है कि मोइन अली ही मेरे बेस्ट ओवरसीज प्लेयर। एक गेम में लाइक वो जो थर्ड पोजीशन रहता है, नंबर 3 बैट्समैन, कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक इंडिया के लिए नंबर 3 विराट कोहली थे, ठीक है, और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए थे। तो ये जो बोल्ड मूव जो सीएसके ने किया है कि मोइन अली जिसने कभी तो नंबर 3 पे बैटिंग नहीं की है, लेकिन उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया, एक ऐसी पोजीशन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और जो परफॉर्मेंस दिया है, तो उस पे क्या क्या लगता है आपको? I think MS Dhoni is utilizing him really well. I see Suresh Raina has not got many match practice as Moeen Ali does. So ये देखकर शायद ओइन मॉर्गन एक ही बंदा होगा जो बहुत खुश होना चाहिए कि उन्हें लगता है उनको एक और नया नंबर 3 बैट्समैन इंग्लैंड के लिए मिल गया। इंग्लैंड के सब पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव धमाकेदार बैट्समैन है, पर उनके पास और एक बैट्समैन मोइन अली के नाम से है, तो ये उनके जहन में जरूर है। ओके, तो देखना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में मोइन अली नंबर 3 पे आते हैं या उनके ट्रेडिशनल बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, तो ये तो वक्त ही हमें बताएगा। फिलहाल तो लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टली बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर फॉर दिस टूर्नामेंट। तो श्रीजीत, आईपीएल बहुत एक अच्छा टूर्नामेंट है इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए, तो क्या लगता है कि इस साल का इमर्जिंग प्लेयर कौन है? ये बहुत बहुत ज्यादा अनकैप प्लेयर्स हमारे आईपीएल में खेलते हैं और खेलते हुए आ रहे हैं, पर मुझे एक ही नाम हमेशा मेरे मन में आता है, वो है चेतन सकारिया। अभी वो एक्चुअली आईपीएल शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था उनके उनके साथ, बट देन ऑल्सो उन्होंने अपना मेंटल टफनेस दिखाया, और यही तो कॉम्पिटिटिवनेस और क्रिकेट का चाहत है इंडिया में, कि वो कुछ भी सिचुएशन में आकर आईपीएल में परफॉर्म कर सकते हैं। ही मेड एन इम्प्रेसिव डेब्यू अगेंस्ट पंजाब एज ही टुक 3 विकेट्स। उन्होंने जस्ट 31 रन कंसीड किया उनके 4 ओवर के कोटा में, और उन्होंने अपना नाम उधर बनाया अपनी टीम के। यस ऑब्वियसली एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने जो मेंटल टफनेस दिखाई है एंड उन्होंने जो परफॉर्म किया, लाइक उनके पास ऑलरेडी एक कार्तिक त्यागी था बॉलर उनके पास, लेकिन उन्होंने राजस्थान के जो मैनेजमेंट ने जो भरोसा रखा है चेतन पे, और द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन दिस इनिंग्स, वो स्टार्ट भी करते हैं, डेथ में भी डालते हैं, तो व्हाट एन इमर्जिंग प्लेयर है। कम ऑन। करेक्ट। तो ये हमेशा ना इकोनॉमिकल स्पेल डालने में वो मशहूर है। तो वो आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में भी डालते हैं, डेथ में भी डालते हैं, तो ही हैज एन impressive change of pace as well. You know, he has a different kind of ball that he puts with the middle finger and he rolls in with his arms. So वो एक different kind of ball है जो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ है। So also वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो सौराष्ट्र से आए, तो इंडिया के पास ज्यादा लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है, तो इफ ही प्लेज वेल ही हैज अ pretty good chance to go somewhere in the Indian team. और जहाँ पे बॉलर्स 9 की इकोनॉमी से डालते हैं, ये बॉलर 8 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है, जो राजस्थान का एक्चुअली वीक पॉइंट था कि बहुत इकोनॉमिकली वो लोग बहुत ज्यादा ये कर रहे थे, रन्स दे रहे थे, और चेतन अकेला 8 का इकोनॉमी डाल रहा है। दिस प्लेयर इज लाइक बहुत आगे, लगता है मेरे को कि फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। Correct. And also he's just 23 years old, so future is bright for Chetan Sakaria is what I think. Guys, I really hope you enjoyed this episode. This was a different episode from usual. I hope you will have something to take away from our picks. But IPL हो या ना हो, cricket हो या ना हो, ये हमारा last episode नहीं था. The show is going to go on. We are planning to start a new a theme of episodes wherein we will give you a report card of each team. We are going to discuss about their performances. Until now, we are going to rate players based on their performances. It will be an interesting episode. It will be an interesting theme as usual. We are going to bring you some interesting stories as always. So guys, if you love what we do, please like that button, comment with your cricket fans, and share this video as much as you like. Comment down below, guys, what do you think, and suggest us some of the
videos which you would like us to make. So also follow us on Instagram. Our link is in the description. So have a safe, corona-free week, guys. Cheers.